वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और आज का हमारा टॉपिक है द लिटिल रेड हैन, एक छोटी सी लाल मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन केयरफुली एंड रीड अलाउड विथ मी। गौर से सुनिए और मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आप भी मेरे साथ में बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे। अ लिटिल रेड हैन lived on a farm with a cat, a dog and a duck. One day she found a few grains of wheat. Who will sow the wheat? She said. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she sowed the wheat. After some time the wheat grew tall with ears full of grain. Who will cut the wheat? Asked the little red hen. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she cut the wheat. Now she said, who will thresh the wheat? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she threshed the wheat. When the wheat was threshed, she said, who will grind the wheat? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she ground the wheat. When the wheat was ground into flour, she said, who will bake the bread? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. And she baked a lovely loaf of bread. Then she said, who will eat the bread? Oh, I will, said the duck. Oh, I will, said the cat. Oh, I will, said the dog. Oh, no, you won't, said the little red hen. I will. And she called her chicks and they all ate up the lovely loaf of bread. बच्चों, अब हम इसे पढ़ लिए हैं। अब इसमें क्या बताया गया है हम वो देखते हैं। A little red hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. One day she found a few grains of wheat. इसमें ये बताया गया है बच्चों कि एक छोटी सी लाल मुर्गी एक फार्म में, वो खेत में रहती थी और वो एक कैट, एक डॉग और एक डक के साथ में। एक दिन बच्चों उसे क्या मिलता है? गेहूं के कुछ दाने मिलते हैं। Who will sow the wheat? She said. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she sowed the wheat. अब बच्चों उस लिटिल रेड हैन ने क्या पूछा कि वीट को कौन सोव करेगा? तो डक ने कहा कि मैं नहीं करूँगा, कैट ने कहा कि मैं भी नहीं करूँगी और डॉग ने भी कहा कि मैं नहीं करूँगा। तो बच्चों लिटिल रेड हैन ने, लाल मुर्गी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं करूँगी। तो इसने बच्चों गेहूँ को सोव्ड करे। आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रेव टॉल with ears full of grain. Who will cut the wheat? Asked the little red hen. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she cut the wheat. अब बच्चों क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद गेहूँ लंबे लंबे हो गए। गेहूँ के जो पौधे थे तो वो लंबे लंबे हो गए और इसमें गेहूँ की बालियाँ भी लग गई। तो लिटिल रेड हैन ने कहा कि अब गेहूँ को कौन काटेगा? तो बच्चों डक ने कहा कि मैं नहीं, कैट ने कहा कि मैं नहीं और डॉग ने भी कहा कि मैं नहीं। तो लिटिल रेड हैन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। तो बच्चों उसी ने गेहूँ को काटे। नाउ शी सैड, हु विल थ्रेश द व्हीट?
Not as said the duck, not as said the cat, not as said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she threshed the wheat. अब बच्चों लिटिल रेड हैन ने कहा कि गेहूं को कौन थ्रेश करेगा, तो डक ने कहा कि मैं नहीं, कैट ने कहा कि मैं नहीं और डॉग ने भी कहा कि मैं नहीं। तो लिटिल रेड हैन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मैं करूँगी। When the wheat was threshed, she said, "Who will grind the wheat? Not as said the duck, not as said the cat, not as said the dog." Very well then, said the little red hen. I will. So she ground the wheat. अब क्या हुआ बच्चों कि जब गेहूँ थ्रेश हो गया, अलग हो गया, तो फिर लिटिल रेड हैन ने कहा कि गेहूँ को कौन पीसेगा, तो डक ने कहा कि मैं नहीं, कैट ने कहा कि मैं नहीं और डॉग ने भी कहा कि मैं नहीं। तो लिटिल रेड हैन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मैं करूँगी और बच्चों इसी ने गेहूँ को खुद पीसे। When the wheat was ground into flour, she said, "Who will bake the bread? Not as said the duck, not as said the cat, not as said the dog." Very well then, said the little red hen. I will. And she baked a lovely loaf of bread. अब बच्चों क्या हुआ कि जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि लिटिल रेड हैन ने गेहूं को खुद पीसे थे, तो वो क्या हो गया था, गेहूं वो फ्लोर बन गया पीसने के बाद। तो फिर बच्चों लिटिल रेड हैन ने कहा कि ब्रेड अब कौन बनाएगा, कौन सेकेगा, तो डक ने कहा कि मैं नहीं, कैट ने कहा कि मैं नहीं और डॉग ने भी कहा कि मैं नहीं। तो लिटिल रेड हैन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर बच्चों इसने क्या किया, इसने एक बहुत ही मज़ेदार और एक अच्छा लवली सा ब्रेड तैयार किया। Then she said, "Who will eat the bread? Oh, I will," said the duck. "Oh, I will," said the cat. "Oh, I will," said the dog. "Oh no, you won't," said the little red hen. "I will." अब बच्चों लिटिल रेड हैन ने कहा कि ब्रेड को कौन खाएगा, तो डक ने कहा कि मैं खाऊंगी, कैट ने कहा कि मैं खाऊंगी और डॉग ने कहा कि मैं खाऊंगा। तो लिटिल रेड हैन ने कहा कि अरे नहीं, आप नहीं खा सकते और ये काम भी मैं करूँगी। एंड शी कॉल्ड हर चिक्स एंड दे ऑल ate up द लवली लोफ ऑफ ब्रेड। फिर बच्चों लिटिल रेड हैन ने अपने चिक्स को बुलाया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वो टेस्टी ब्रेड को मिलकर खाया। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर द पिक्चर्स to put them in the proper order. Try to write a sentence about each. झेल की तस्वीरों को सही तरतीब में लगाने के लिए इन्हें नंबर दीजिए। हर तस्वीर के बारे में 1-2 जुमले लिखने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों नीचे यहाँ पर कुछ आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो उनमें आपको क्या करना है, उन्हें तरतीब से लगाना है और उन्हें नंबर देना है कि कौन से नंबर पर कौन सी तस्वीर होगी। तो सबसे पहले लिटिल रेड हैन ने क्या किया था बच्चों, उसने गेहूं को सो करे थे। तो बच्चों इस तस्वीर पर आपको नंबर 1 लिखना है। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या हुआ था, रेड हैन ने गेहूं को खुद काटे थे, तो इस तस्वीर को बच्चों आपको नंबर 2 देना है। इसके बाद बच्चों इस तस्वीर को नंबर 3 देना है आपको, और बच्चों इस तस्वीर को आपको नंबर 4 देना है क्योंकि लिटिल रेड हैन ने गेहूं को खुद पीसे थे। ओके, और नंबर 5वीं तस्वीर पर उसने क्या किया था बच्चों, उसने उसका ब्रेड बनाया था, तो इस तस्वीर को आप नंबर 5 देंगे। और लास्ट वाली तस्वीर पर नंबर 6 पर लिटिल रेड हैन और उसके बच्चों ने सब मिलकर उस टेस्टी ब्रेड को खा लिया। तो बच्चों इस तस्वीर पर आपको नंबर 6 लिखना है। तो इस तरीके से बच्चों आपको हर तस्वीर को तरतीब से लगाना है
और इसमें क्या हुआ है। तो आपको बच्चों हर तस्वीर के बारे में 1-2 जुमले लिखने की कोशिश करना है। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।